Good morning, dear students. In the previous class, we have already discussed about the process of translation as well as regulation of gene expression. Lastly, we have discussed about the lac operon, which is for the lactose metabolism, and how an operon functions as a single regulatory unit which has presence of promoter, operator, structural genes and the regulatory gene. So how this regulation of gene expression, that is turn on and turn off mechanism, happens was discussed by us in the previous class. Now we are going to talk about one another very important topic from this chapter, which is known as the Human Genome Project. No two individuals have a similar type of genetic makeup. Only in the case of monozygotic twins, right, the ones which develop from the same zygote, they have mostly the same genetic makeup. Otherwise, even the twins are going to have a different genetic makeup. And this difference in the genetic makeup is due to the difference in the nucleotide sequence, right? So here we are mentioning that no two individuals have a similar genetic makeup, right? So genetic material is nearly same, but it is not completely identical, right? Each one of us is having some variations in the DNA which are specific only to us and not to others. So every individual will be having a slight variation in their genetic makeup, and this is due to difference in nucleotide sequence of DNA. This variation is due to the difference in the nucleotide sequence, right? जो बेस पेयर्स की हम बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करते हैं डीएनए में, वो हम सब में थोड़ी बहुत अलग है. पूरी अलग नहीं है, पर थोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो सब में थोड़े अलग हैं. और इसी की वजह से आपने शायद देखा होगा दैट डिफरेंट क्राइम साइट्स पे क्राइम रिपोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, that the DNA isolation and sequencing of DNA is being done, and that shows that whether the suspect and the criminal are same or not. Such type of purpose, such type of researches you might have observed in some of the TV shows also, and that concludes that सबके पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है डीएनए की वो थोड़ी बहुत क्या होती है, अलग होती है, ठीक है. And therefore scientists had an ambition that to determine this nucleotide sequence of DNA in the humans. So therefore scientists have tried to isolate, clone and prepare whole DNA sequence of humans. And this sequencing मतलब साइंटिस्ट ने क्या ट्राई किया है कि उन्होंने आइसोलेट, क्योंकि एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल थी तभी ही डीएनए का आइसोलेशन हो चुका है, और डीएनए का आइसोलेट करने के बाद उसका क्लोनिंग मतलब एग्जैक्टली उसकी एक दूसरी कॉपी बनाने का भी मेथड प्रिपेयर कर लिया है. सो आइसोलेटिंग द डीएनए, क्लोनिंग द डीएनए, ये सब टेक्निक्स यूज करके साइंटिस्ट को ये एम्बिशन था कि वो पूरे ही डीएनए सीक्वेंस को क्या करे, सीक्वेंसिंग कर दे. पूरे ही डीएनए का सीक्वेंसिंग मतलब किसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरी एक सीक्वेंस डेवलप करने का उन्होंने ट्राई किया था. एंड दिस वाज पॉसिबल बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ टू मेन इंस्टीट्यूट्स, दैट इज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. इन दोनों के जॉइंट
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हुआ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP. So by the joint efforts of US Department of Energy and National Institute of Health, इन दोनों इंस्टीट्यूट्स और उनके रिसर्चर्स, उनके साइंटिस्ट की मदद से ये पूरी डीएनए को सीक्वेंस किया गया है एंड दैट इज अंडर द प्रोजेक्ट व्हिच वाज नेम्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. लेटर ऑन राइस जीनोम प्रोजेक्ट, माइस जीनोम प्रोजेक्ट, ऐसे कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स के भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई है. बट द वेरी फर्स्ट दैट वाज बीइंग स्टडीड, जो पूरी ही डीएनए की सीक्वेंसिंग को स्टडी किया गया था ऑफ ऑल द 23 क्रोमोसोम्स, that was by the joint efforts of these two institutes. The Human Genome Project is such a huge project that just sequencing of one base pair would require approximately $3. अगर costing की बात की जाए तो one base pair को sequence करने की costing $3. One base pair को sequence करने की costing थी $3. So if it is considered that हमारे पास 3.3 into 10⁹ base pairs हैं, right? So it would be $1 billion. That would be a huge investment into the project. $1 billion would be required, not only money, but it is expensive. It would require several computational devices. It required several researchers, and all of them collaboratively completed this Human Genome Project. The Human Genome Project, if you would like to write down the sequences in the notebook, right? अगर notebook कोई book में लिखना चाहे और 1000 pages की अगर book हो, तो 1000 पेजेस की बुक में हर एक पेज पे अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स भी लिखे जाए, then there would be a requirement of 3300 books just to write down the whole human genome. हमारी सीक्वेंसिंग लिखने के लिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कॉस्टिंग तो है ही, एक बेस पेयर का कॉस्टिंग $3, तो अगर पूरे ही सारे बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग करना है तो $1 billion would be required. Not only money, इतने रिसर्चर्स, इतने साइंटिस्ट, उतने कंप्यूटेशनल डिवाइसेस और उतनी एडवांस टेक्निक्स हर एक की जरूरत थी टू फुलफिल द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अगर कोई बुक में लिखा जाए और अगर वो 1000 पेजेस की बुक हो, तो अबाउट हर एक पेज पे अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स भी लिखे तो भी 3300 बुक्स चाहिए होंगी जस्ट टू कंप्लीट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट, रिटन फॉर्म में. इसीलिए उसी टाइम पे एक नई फील्ड का भी रिसर्च हुआ था जिसे कहा गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है दैट यूटिलाइजेस computational devices and the database is stored in computers in order to get the whole process easy so that it can be reliable and it can be retrieved whenever required, right? उसमें store भी कर सकते हैं, उसमें रख भी सकते हैं और उसको अगर isolate या उसमें से कुछ research के लिए कुछ study करना है, then you can also retrieve that data, and therefore a new field came into existence and that was the bioinformatics. So through the genetic engineering, DNA isolation was possible, cloning was possible. Through bioinformatics, the data could be stored easily, the data could be obtained whenever it was required, and all these things helped in fulfillment of the Human Genome Project. The project had started in 1990. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1990 जो है इस साल में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज एस्टिमेटेड टू गेट कंप्लीटेड बाय 2003. It was being slated that it is going to be completed in 2003, but actually in February 2001 only an formal announcement was made for the completion of the project. So project was to be completed in 2003, but in Feb 2001 a formal announcement for completion was made,
formal announcement for the completion was made, but actually in 2006 individual क्रोमोसोमल सीक्वेंसिंग, जो क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंस थी उसे सबसे लास्ट में आइडेंटिफाई हुई, इसलिए 2006 में सारे ही क्रोमोसोम, 2006 के पहले तो ऑलरेडी सारे ही क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग हो चुकी थी, पर सिर्फ क्रोमोसोम 1 जो है वो सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ था, एंड देयरफॉर द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2006। वैसे तो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट 2001 में ही बन चुकी थी दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, बट इंडिविजुअल क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग जो की गई थी वो 2006 तक चली थी, क्योंकि क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम जिसको पूरी सीक्वेंसिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बाकी प्रोजेक्ट 2003 में नियर टू कंप्लीशन था। Now why doing this all tedious work? ये करने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है हर एक को सीक्वेंस करने की, उससे क्या मिलेगा? So for that there were certain goals which were declared by the Human Genome Project. Human Genome Project के रहे एक goals दिए गए थे, और वो goals क्या थे? That first is to determine the sequence and number of all the base pairs in human genome. हर एक बेस पेयर का सीक्वेंस और नंबर जो था उसको, मतलब जो पूरा ही ह्यूमन जीनोम है उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, उसमें कितने बेस पेयर्स हैं, मतलब हाउ मेनी, व्हाट इज द सीक्वेंस, दैट वाज द आइडेंटिफिकेशन, राइट, जो सब में डिफरेंट होता है, तो वही आइडेंटिफाई करना सबसे पहला गोल था। The next is to identify all the genes present. कितने genes present है, फिर बाद में features में आप देखोगे that there are 25 to 30,000 genes present, right? तो 25 to 30,000 genes एक chromosomes में present है, तो वो सारे ही genes को identify करना that was important. सिर्फ genes को identify नहीं करना है, genes को identify करके genes के फंक्शंस कौन से होते हैं ये भी देखना है, विच जीन इज फॉर विच प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि हम बोलते हैं कि बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए जीन है, तो कौन सा जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन का फंक्शन, उस जीन का लोकेशन, उस जीन का सीक्वेंस, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग करने पर यह भी पता चलता है डिफेक्ट इन विच जीन्स रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हम बोलते हैं कि कई डिसऑर्डर्स ट्रीट नहीं होते, सिकल सेल एनीमिया, राइट, तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोटीन इन अवर बॉडी। तो वो प्रोटीन क्यों नहीं बन रहा, और वो प्रोटीन नहीं बन रहा तो उसके लिए कौन सा जीन डिफेक्टिव है, उसे आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर वो जीन आइडेंटिफाई हो गया तो जीन का रिप्लेसमेंट के भी क्या ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आगे रिसर्च किया जा सकता है। इसीलिए टू आइडेंटिफाई द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Moreover, storing all this information in the database, computational devices में ये डेटा को स्टोर किया जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़ने पर इस सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई, इस सीक्वेंस को स्टडी करके क्या चेंज हो सकता है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। इम्प्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, अगेन स्टोरिंग एंड फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। प्रोजेक्ट में रिजल्ट इनटू सर्टेन एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। प्रोजेक्ट के साथ है एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, तो इन इश्यूज के बारे में भी एडिशनल एड्रेस करके उन्हें सॉल्व करने का ट्राई किया गया है, दैट व्हाट कैन बी द इश्यूज फॉर different types of genetic sequences. So that is the goals of Human Genome Project, right? अभी आगे हमें जीनोम प्रोजेक्ट में मेथोडोलॉजी भी पढ़नी है और साथ साथ में उसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करना है, so that we will be discussing.